subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any update, cause whenever we upload a new video you will get a notification. Hi, good morning students. मैं अतुल शेख from Edurise Private Limited. Well, बहुत दिनों के बाद प्रियांशी आई हुई है चाइना से and she has cleared MCI and we have got another guest Avinash. Both have done MBBS from China and today let's have some quick conversation with them regarding how was their journey in China, how did they completed the MCI exam, so called the big टेंशन वाला एग्जाम. तो आज प्रियांशी और अविनाश से पूछते हैं. सो पहले तो इनको इस शो में वेलकम करते हैं. प्रियांशी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस. कौन सी यूनिवर्सिटी से आप MBBS किया? सर चेंगचो यूनिवर्सिटी. सेम यूनिवर्सिटी, राइट. तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे आप? सो आई एम प्रियांशी and I did my MBBS from Chengcho University, right. And I have cleared my MCI exam this time and I got a score of 162. Great. Great. Hello, I'm Avinash and I have passed my MBBS from Chengcho University and I cleared my exam in this June. Okay. And I got 166 marks. Great. Well, actually मैं आपको बता दूं, जितना जल्दी इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया इतनी जल्दी तो होने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए इतने सारे सर्टिफिकेट्स शी हैज कैरिड. शी विल हरसेल्फ टेल अस दैट के ये जो रिकमेंडेशंस है, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज. Sure, sir. So I went to China in 2012. Right. And starting say I have always participated in everything. I was student union का president वहाँ पे, international student union. Great. Then I was given the excellent intern award also. And then every year this is the president wala certificate. Okay. That I served as a president for 2 years. Then this was for internship, excellent intern award of. Okay. And then every year you get awarded for excellent student. And yes. So you get a scholarship? Yeah. We get scholarships. Great. Also. So these are my certificates for that. They're in Chinese and I have the English translations also. Okay. Yeah. So these are the translations. Okay. And so also I had cleared my HSK 3 level. Okay. In so my this is second the year. certificate you get? Yes, I passed it in my second year. So great. Second year में ही इन्होंने अपना HSK का जो एग्जाम है उन्होंने क्लियर कर लिया. And I got to know that you have participated in surgery team as well in China. Yes. So during my internship, so I was in surgery department, and for ortho and cardio, I assisted in almost 14 to 15 surgeries. And even my doctor was so good, and he was like, he really helped me. He made me learn so many things that he helped me like assist in surgeries and everything. It was a very good experience. How many surgery you have performed or was being participated? 20 to 22. 20 to 22. Yes. So those students who think that in China there is a very low chances of practical, this is an example. Yes. What you say about, I would like to say that guys, I think it's a false notion that you cannot talk to patients or treat patients. It's not true. You will get opportunities if you are hardworking. If you work on your language skills, then doctors will actually help you to deal with patients. So how old the university is? Like our university is almost 100 years old. Okay. And like they started taking international students from like 1997. Oh, So 1997. it's a very old. Okay. Old university. Is it a government university? Yes. All So all universities in China. universities in China are government universities. All universities. Yes, sir. Okay. So let me ask you one question, which is very much asked. Like, why China? There are options when you thought of opting for China. उस टाइम पे तो रशिया भी था, यूक्रेन भी था, बहुत सारे कंट्रीज था, तो चाइना क्यों चूज किया आपने? Sir, my reason was very simple. First of all, it is very economical. It is very affordable. ठीक है. And secondly, like it's very safe. And right now, like China is a very strong, powerful country. True. Safety बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. Right. तो प्रायोरिटी थी कि मतलब आपका क्या कॉल था? मेरे point of view से sir, of course, as a girl, safety is a very big सबसे issue. पहला point. Yeah, for parents also. And दूसरा चीज sir, I have saved almost 2 years of my life because of China's internship. हाँ जी सर, because sir मेरे को यूक्रेन का भी बताया था, रशिया का भी बताया था. सर problem is रशिया में you have to do the language courses there, and then यूक्रेन का when you come back
only till you clear your exam. Only after that you can do internship. Yes. So that is very problematic because True. नहीं हो पाता clear, फिर इंसान डिप्रेस हो जाता है. Right. Yeah, that's why. You know, I always tell that अगर आपको डिग्री लेना है, MBBS हो, चाहे आप जो US सिलेबस वाला कंट्री में जाएंगे जहाँ पे MBBS की जगह MD डिग्री देता है, जो कि ना ऑलमोस्ट सेम है, आपको करना वही है, डिग्री वही मिलना है, तो क्यों आपने लाइफ का 2 साल खराब करनी. मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चाइना में क्या है, चाइना चूज करके आप अपने लाइफ का 2 साल बचा लोगे. जब तक मुझे जितना आपसे इंटरेक्शन करके पता चला कि आपके इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स गए थे यूक्रेन में, स्टिल देयर. Yes, sir, because they are still there, or maybe they came back and now they are busy trying to complete clear MCI, and then they will get into internship, and then फिर job लगेगी. It will be almost 8 to 9 years, sir. See, ultimately understand. बार मैं कहता हूँ कि आज के डेट में इनके साथ जो बच्चे यूक्रेन और रशिया गए थे, आज भी वो पढ़ रहे हैं. हाँ जी सर. Correct me if I'm wrong. No, you're right, sir. और आज ये बच्चे का MBBS कंप्लीट, इंटर्नशिप कंप्लीट, MCI का एग्जाम भी कंप्लीट, एंड दे आर अबाउट टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट नीट एग्जाम. करेक्ट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन्होंने भी, इनके हाथ में भी वही डिग्री है जो बच्चे यूक्रेन से पढ़ के आके करेगा. बट they are smart enough to understand that when we are opting for a longer course, we have to value the time. Yes, sir. So as it is, MBBS takes a lot of time. Agree. And if you go to Ukraine and all those countries, you'll have to devote more time, almost 8 years. That's a lot, you know. That's People can start working and start earning and stuff. So it's उसके बाद PG करना है. हाँ सर, बहुत है ना. अभी हमें सुपर स्पेशलाइजेशन है, PG है, बहुत सारी चीजें हैं. अच्छा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू का अगर हम बात करें, फॉर ए गर्ल चाइल्ड, आपके पेरेंट्स का कंसर्न, और आप जब वहाँ पे थे तो आपका क्या व्यू है चाइना के बारे में खास? सर, it's very safe. China is one of the safest countries you can be in, especially because laws are very strict. वहाँ पे कम्युनिस्ट है, so उसकी तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, स्पेशली फॉर गर्ल्स. आई वुड से आज के डेट में लोग बोलते हैं चाइना के साथ इंडिया का एक टेंशन चल रहा है, बॉर्डर टेंशन चल रहा है. वहाँ पे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा सर. लोकल पीपल आर सो फ्रेंडली, दे आर सो हेल्पफुल. लाइक स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द फर्स्ट डे दे विल बी लाइक, अच्छा फॉरेनर है तो दे विल बी नीडिंग हेल्प, वी विल हेल्प देम. ऐसा कुछ नहीं है कि अरे इंडियन है तो बात नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ऐसा नहीं है अविनाश. They are very polite. ओके. हॉस्टल लाइफ कैसा है? हॉस्टल लाइफ तो हॉस्टल्स वहाँ पे एक्चुअली बेटर है. इंडिया से तो बेटर ही कंडीशन है. मतलब आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में मेस वगैरह ही मिल जाती हैं आपको इंडियन. ठीक है. मतलब अपने. अच्छा, फूडिंग का क्या है वहाँ पे? सर सेल्फ कुकिंग इज बेटर. हाँ सर, आपको सारी जो इंडियन वेजिटेबल्स हैं सब कुछ मिलता है, बस हाँ थोड़ा बहुत कुकिंग सीखना. कितना दूर है? सर वेरी नियर, सब कुछ है. DP बोलते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं ना वहाँ पे. एवरीथिंग मुझे सुनने में आया, और मैं भी गया था, तो मैं जो ऑब्जर्व किया कि चाइना का यूनिवर्सिटीज का कैंपस इतना ह्यूज होता है कि एवरीथिंग इज जस्ट इनसाइड. यू डोंट हैव टू गेट आउट. You don't have to go anywhere, sir. Everything is available. Food, clothes, everything in the university. Everything. Yes, sir. Okay. What about the rumor which has been created by the consultants who are not doing in China, कि भाई चाइना मतलब एक लैंग्वेज प्रॉब्लम? नहीं सर, लैंग्वेज प्रॉब्लम इज एवरीवेयर. यूक्रेन में भी होगा, ऐसा नहीं है. चाइना में भी है. मतलब बात ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. इफ यू गो देयर एंड इफ यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू कैन डेफिनेटली डू इट. सर, हम लोगों ने कर लिया, HSK 3 पास कर लिया. शी इज फ्रॉम कोलकाता, और आज अगर इनको नीलरतन सरकार में इंटर्नशिप करना होता, जबकि इनका इंटर्नशिप ऑलरेडी कंप्लीट है, तो अगर वेस्ट बंगाल से करता, क्या आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती? बात सर कहीं भी आएगी, इंडिया में भी किसी भी स्टेट में साउथ में आएगी. जाते हो तो आप नॉर्थ के हो, आप साउथ में जाते हो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी. ट्रू. नाउ यू आर गोइंग टू सम अदर कंट्री, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होता है. बट आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको बेसिक चीजें समझ में बट सर, इट्स नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम जितना लोगों ने इशू बनाया है. वहाँ पे जाके यू कैन लर्न एंड यू विल बी फाइन. सर आजकल तो ट्रांसलेटर्स हैं, सब कुछ है. इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. अच्छा, हाउ डू यू रेट द English speaking or understanding ability or the way of English teaching of the Chinese faculties? Sir, How do you see? they will do their best अपनी तरफ से. There are many doctors who go to US for conferences and everything. So it's not that कि language नहीं आती है उनको English. They give PowerPoint presentation. Is it understandable? Yes sir, definitely understandable. Professors होते हैं, they already have their fellowships from UK or US. Yes sir. अच्छा. हाँ sir, like John Hopkins वगैरह के. हाँ sir. sir. Highly qualified. And sir, internship में भी like they will
give you doctors who know English. They will try to help you कि हाँ मतलब आपको गाइड करेंगे इंग्लिश में कर ऐसा है कि चाइना मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हैं दे आर ऑल WHO रिकग्नाइज्ड। हाँ। ठीक है। ठीक है, और आपका सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, प्लस बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, हाउ डू यू सी द वेदर कंडीशन? So I loved it because I love snowfall and there's Oh. so much snow there. हाँ। And sir summers is also okay. Extreme गर्मी नहीं जैसे है। इंडिया में हाँ ऐसा नहीं तो सर, है, ऐसा सर। बिल्कुल भी नहीं है। वेदर बहुत फर्स्ट अच्छा थोड़ा है। बहुत होता है ना कि मतलब आपको वेदर में मतलब आप इतना एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम बात करें जैसे कि चाइना के लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कैडावर्स डेड बॉडीज नहीं मिलती या प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना अच्छा है नहीं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और टेक्नोलॉजीज की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, क्या आपका राय है उसमें? Sir, I would say भाई I will give 110 out of 100 for clinical skill and ये सब चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, because sir उनके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं एंड लाइक हमारे इंडिया में भी लाइक कॉलेजेस में उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना वहाँ पे प्रोवाइड किया। प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें, Sir, आप कभी हैव यू एवर बीन टू member of the operation team or surgery team? हाँ sir, I've assisted in surgeries like I said before, हाँ। and sir also we had clinical skill exams also, तो वो dummies provide करते हैं CPR देने के लिए, ठीक मतलब है। लंबा अच्छा, पंक्चर। डेड बॉडीज मिलते हैं? हाँ सर, कडावर पे लाइक one body पे maximum 5 students। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 to 6 भीड़। हाँ सर। और एक ग्रुप में कितना, 10-12 बच्चे या 15 नहीं बच्चे? सर, 5 to 6 बस पर बॉडी 5 to 6। एंड क्लासरूम में जो आपका ग्रुप्स बनते हैं, हाँ कितने जी। बच्चों का ग्रुप बनता है? सर वही 6-7 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। Maximum। हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं है कि Great। मतलब आपको बॉडी जो कैडवर्स वगैरह आप इजीली मतलब अच्छे से आप सीख सकते हो उसमें। सो वही है कि वहाँ पे सीख के देन वापस आके इफ़ यू स्टडी फ्रॉम BD चौरसिया वही चीज़ें, देन वो तुम्हें परमानेंटली याद हो जाएगा वो चीज़। चलिए, ये तो हो गया हमारा डिस्कशन जो कि ना हमने चाइना के बारे में सुना। अब सुनते हैं कि इनका MCI जो इन्होंने क्लियर किया, इसका जर्नी के बारे में, इसका टिप्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं